Hi everybody, this is the Robo Vibes Fitness, Wellness and Lifestyle Solutions from Gurgaon, India. Thank you so much for a wonderful response that we're getting for our earlier live that we've done for staying active when at home. I hope you have watched that feed. If you haven't watched that feed, you can go to the video section and watch that again on Facebook. And thank you so much for all the messages and inquiries and questions that are coming in for your health. We are providing complimentary counseling these days, especially for the pandemic situation in which people are struggling to build their immunity, which is why we also plan this session, which is on protein, which is called Protein Precedes Good Health. So I have with me Rahul Aryan, who is a fitness coach and a nutritionist, and he is also a strength conditioning coach, strength and endurance. He also works with special population cases, and in fact, most of his clients are special population cases. And he's also an anabolic coach, and he's also preparing athletes and other people who are running for marathons, etc. So that is something about Rahul. I am Samara. I'm a tarot reader, spiritual healer, life coach, and a corporate trainer. And today we have discussed about, if you have gone and watched our YouTube health and happiness series, we discussed about nutrition over there. We also discussed about what are micronutrients, what are macronutrients, and in which one of the most essential macronutrient, which is protein, is what we discussed, in fact, touch base with. So today's session is going to be all about that, and I have a list of questions which I have received with me, which I would like to ask Rahul. So Rahul, first of all, would you like to say something before we start? जी अभी हमें काफ़ी मुश्किल से टाइम मिलता था लाइव आने का, ठीक है, लेकिन जैसे ये पैंडेमिक दोबारा से शुरू हुआ तो लोग भी क्वेरीज वगैरह आने लगे और लोग हमसे पूछने लग गए कि सर लाइव नहीं आ रहे हो, काफ़ी टाइम से लाइव नहीं आए। इनफैक्ट पहले तो ज़्यादातर टैरो का ही पूछते थे कि टैरो के लिए लाइव कब आएंगे, पर मतलब दीज डेज इंक्वायरी जो है हेल्थ एंड फिटनेस के लिए बहुत आ रही है, which is actually a good thing. अपने फिटनेस और हेल्थ का ख्याल रखना is actually very very essential at this point in time. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ये टाइम हो या ना हो, उसके आपको हेल्थ और फिटनेस का ख्याल रखना ही रखना है। Correct, absolutely right. So Rahul, I would like to ask you, since we did the last feed last time, which was about staying active and stay at home, उसकी कुछ inquiries हमारे पास आई थी. Would you like to answer those queries in a nutshell about summary about those queries? Please discuss that. ठीक है, क्वेरीज जो कुछ इस तरह से आई थी, लोग पूछने लग गए थे कि सर क्या खाएं, ठीक है, खाने पीने से जुड़ी हुई चीजें ज्यादा पूछने लग गए थे, ठीक है, स्टे एक्टिव, हाउ टू स्टे एक्टिव एंड इम्यूनिटी को किस तरह से इंप्रूव करना है, इस तरह की क्वेरीज जो आने लग गई हैं अब, ठीक है, जो काफी हद तक हमने पिछले सेशन में कवर किया था, लेकिन अभी जो क्वेरीज आ रखी हैं ये ज्यादातर प्रोटीन और प्रोटीन मिथ से जुड़ी हुई हैं। उसी टाइम पे हमने ये सोचा था कि प्रोटीन से ही जुड़ा हुआ हम कुछ आगे वाला लाइव करने वाले हैं। Yes, I think because हमने ये भी डिस्कस किया था, if you watched our YouTube feed, and unfortunately अगर आपने वो feed नहीं देखा है, so I think you're missing out on a lot of fun over there, क्योंकि YouTube is something which is very active right now. In fact, Facebook and Instagram से ज़्यादा active हमारा YouTube चल रहा है, right? And almost every day there is a video which is going live over there. So please go ahead and subscribe to our YouTube channel. I will mention the link shortly in the feed, so you can do that. So like I said, over there the things are very active. हम लोगों ने nutrition का health and happiness series भी start किया था. So protein, which is the most essential macronutrient, not micronutrient. Yeah, I'm not a nutritionist, so sorry. So macronutrient. So again, just a little bit of summary about macronutrient क्या होते हैं. ऐसी अभी मैक्रोन्यूट्रिएंट जो भी मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, लेकिन मैक्रोन्यूट्रिएंट जो होते हैं वो 3 मेजर कंपोनेंट्स और पार्ट्स होते हैं जो हम खाते हैं और जिनके थ्रू हमें एनर्जी मिलती है, उनको मैक्रोन्यूट्रिएंट कहा जाता है, जिसमें कि आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। तो सबसे ज्यादा इग्नोर किए जाने वाला प्रोटीन होता है, स्पेशली इन इंडिया। ओके, एंड आई थिंक इट इज बिकॉज जो इंडियन फूड्स है उसमें मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। आई थिंक आपने प्राइमरी कार्बोहाइड्रेट होता है जी। Right. So let's break down this thing and get into, we understand what's a micronutrient, which is a major nutrient जिससे आपकी बॉडी को जरूरत होती है, राइट, आपकी हेल्थ के लिए जो भी आप खाते हो। So protein is a macronutrient. So what exactly protein is? What is protein? प्रोटीन, देखो, प्रोटीन का नाम सुनते ही पहले तो लोगों के माइंड में डब्बा आ जाता है, लेकिन प्रोटीन हमारी बॉडी में ऑलरेडी है, ठीक है। हमारी जो मसल्स हैं, हमारे मांसपेशियां हैं, वो ऑलरेडी प्रोटीन से ही बनी हुई है, अमीनो एसिड से बनी हुई है। तो प्रोटीन जो है अमीनो एसिड से ही मिलके बना हुआ होता है,
मेजर 20 अमीनो एसिड से, ठीक है। Right. बहुत सारे अमीनो एसिड होते हैं वैसे, लेकिन मेजर 20 अमीनो एसिड से मिलके प्रोटीन बना हुआ होता है। Right. और इसके जो काम होते हैं, कई काम हैं, तो जिनमें से 4-5 मेजर काम हैं। पहला तो इसका हो गया हार्मोन प्रोडक्शन, Right. ठीक है, हमारे हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। फिर हो गया आपका बॉडी बिल्ड एंड मेंटेनेंस, Okay. ठीक है, आपकी बॉडी और के साथ में मेंटेन करता है प्लस बिल्ड करता है, ठीक है। फिर हो गया एंजाइम प्रोडक्शन, Right. ठीक है, हमारी बॉडी में जो एंजाइम बनते हैं ये प्रोटीन के ही थ्रू बनते हैं, जो हम प्रोटीन खाते हैं या फिर जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रोटीन स्टोर्ड है। Right. फिर हो गया ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, हमारी मसल्स में या फिर बॉडी को जिस भी पार्ट को रिकवरी की जरूरत होती है तो ट्रांसपोर्ट करके प्रोटीन इधर से उधर जाते सेल्स में पहुंच जाता है, Right. ठीक है। फिर लास्ट हो गया हमारा 5 मेजर बता रहा हूँ, ऐसे तो बहुत सारे काम है प्रोटीन के। लास्ट हो गया एनर्जी प्रोड्यूस करना, Okay. ठीक है। So protein भी energy produce करता है। बिल्कुल। Okay. Right. So we all know that carbohydrates बड़ी fast energy produce करते हैं। So उसके comparison में प्रोटीन का energy से related, देखो अभी कार्बोहाइड्रेट जब हम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट से हमारा इंसुलिन जो है वो स्पाइक होता है, ठीक है। इंसुलिन स्पाइक होता है तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को जल्दी बनाता है वो, ठीक है। हम प्रोटीन से एनर्जी इन कामों के लिए नहीं लेते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट हमें देता है, ठीक है। प्राइमरी सोर्स हमने कार्बोहाइड्रेट को बनाया हुआ एनर्जी के लिए, लेकिन अगर प्रोटीन से लेते हैं तो प्रोटीन होता है हमारा जो पहली जो चीज है इसमें वो होती है टिश्यू नीड्स, टिश्यू को सबसे ज्यादा नीड होती है इसकी, ठीक है। दूसरा हो गया ये हमारे छोटे मोटे फंक्शन जो होते हैं, किस तरह के हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करके किसी सेल्स में प्रोटीन को डालना है, हमारे मसल माइट्रोकॉन्ड्रिया मतलब मसल्स के को एनर्जी देने वाले, ठीक है, उसमें जाता है। इस तरह के काफी काम है, अदर फंक्शन है। और तीसरा फिर आ जाता है जब ये दो काम हो जाते हैं, फिर होता है एनर्जी। इन दोनों के बाद एनर्जी में प्रोटीन यूज होने लग जाता है अगर हमारा कार्बोहाइड्रेट प्रॉपर ना जाए तो। ओके, ऑलराइट। सो आई थिंक अगर हम कार्ब्स रिड्यूस करते हैं सो प्रोटीन के थ्रू बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, अगर हम डाइट अच्छी रखें, बैलेंस रखें तो प्रोटीन जो है हमें एनर्जी देगा, जरूर देगा, ठीक है। लेकिन प्रोटीन के जो अदर काम है पहले वो करेगा, और हमारी बॉडी में जो ऑलरेडी इतनी सारी कैलोरीज स्टोर्ड हैं, ठीक है, एक बैंक रखा हुआ है फैट के तौर से, कैलोरीज की तरह से, ठीक है, तो वहां से एनर्जी मिलने लग जाती है। अगर हम आइडल प्रोटीन खाने लग जाते हैं, आइडल कार्ब्स, आइडल फैट खाने लग जाते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट धीरे धीरे पूरे करने लग जाते हैं, तो हमें वहां से जो हमारे बॉडी में स्टोर्ड फैट है वो एनर्जी देने लगता है, और एनर्जी के थ्रू हम इसको आउट कर सकते हैं। Absolutely, that is actually interesting. And in fact, if you have any questions, you can ask also. And later on, also when this feed will be put up on YouTube, because it is a part of the Health and Happiness series, udhar bhi comment section mein you can write your questions, and we will get back to you at priority. During the time of pandemic, if you are looking forward for personal questions जो आप live feed में नहीं पूछना चाहते, but if you need any kind of counseling or any help, we are always here to help you out during this phase, so that आप अपनी health का अपने घर में रह के, in case you are suffering from COVID या आपको COVID के symptoms हैं, so किसी भी चीज की अगर आपको help चाहिए हो, over the phone we are available to guide you, right? जी बिल्कुल। So moving on, we talked about what proteins are and why they are important. Now we would like to talk about कौन से sources होते हैं, where can we procure this thing from, कहाँ से available होते हैं, natural sources, unnatural sources, are there any unnatural sources by the way? नेचुरल सोर्सेज होते होंगे, मुझे तो पता नहीं, लेकिन बेसिकली लोग नेचुरल सोर्सेज को भी अननेचुरल सोर्सेज कह देते हैं, वो अलग बात है। Okay, आएंगे so उस पे भी। उस पे आते हैं। फिर से let's talk about the sources of protein. So like you said, unnatural sources, I don't think so there are any. So natural sources of protein, yeah, the sources of protein. So please throw some light on that. नेचुरल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन के जो होते हैं वो है, सबसे पहले नॉन वेजिटेरियन में कोई भी फूड आप लेते हैं, कोई भी नॉन वेज फूड आप लेते हैं, वो सभी प्रोटीन से भरे हुए होते हैं, right? ठीक है, उसमें प्रोटीन तो होगा ही होगा, ठीक है। साथ में थोड़ा बहुत सैचुरेटेड फैट भी होता है, ठीक है। उसमें कार्ब्स ना के बराबर होता है, इनफैक्ट कार्ब्स तो होता ही नहीं है, ठीक है, किसी भी मीट में, ठीक है, चिकन, मटन, फिश, ठीक है, बेकन, उनमें प्रोटीन होगा ही होगा, थोड़ा बहुत फैट होगा, बेकन में ज्यादा होता है, ठीक है। आइडल फैट होता है, अच्छा फैट होता है अगर आपको यूज करना आता है उस फैट का तो, ठीक है, आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट अलाउड करते हैं आपकी बॉडी के तो अच्छा फैट होता है, ठीक है। अदरवाइज कार्बोहाइड्रेट उसमें नहीं होता है, ना के बराबर, ठीक है, अनलेस आप कुकिंग टाइम पे कार्बोहाइड्रेट नहीं डालते हो तो, ठीक है।
फिर और प्रोटीन के सोर्स हैं हमारे पास, दूध है, दही है, हमारा ब्रोकली है। So dairy is ठीक है। also a source of protein. बिल्कुल। Okay, that's very पनीर nice है। to know because dairy को लोग mostly कैल्शियम के साथ वो करते हैं कि दूध आप पीजिए तो आपको कैल्शियम मिल रहा है. But again, you know, this is for people. There is protein in milk as well and the dairy products. बिल्कुल होता है, अराउंड 100 ml में उसमें 3 से 3.5 ग्राम प्रोटीन होता है, ठीक है, जो कि गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन है, ठीक है, और बेसिकली बायोलॉजिकल वैल्यू भी उसकी काफी अच्छी है, ठीक है, बॉडी में डाइजेस्ट एब्जॉर्ब बहुत अच्छी तरह से होता है, ठीक है। आपके एग्स हो गए, उसमें भी प्रोटीन है, ठीक है, वन ऑफ द चीपेस्ट सोर्स है एग्स फॉर प्रोटीन, जो कि नॉन वेजिटेरियन कई बार, सॉरी वेजिटेरियन लोग जो होते हैं वो भी खाते हैं, उनको एगिटेरियन बोल देते हैं, वो अलग खाते हैं, ठीक है। तो एग्स भी खाते हैं, और सोए है, ठीक है, कुछ बीन्स हैं जिनमें प्रोटीन होता है, ठीक है। प्राइमरी क्लास ऑफ प्रोटीन नहीं होता लेकिन होता है, ठीक है। फिर बेसिकली इनसे हटते हैं तो जिसको मैंने अभी जस्ट बात करी, तो लोग कहते हैं अननेचुरल सोर्स है ये, ठीक है। तो प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन पाउडर फॉर्म में वे प्रोटीन की तरह से आप ले सकते हैं, ठीक है। लोग उसको अननेचुरल कहते हैं, डब्बे ऑफ बॉडी, कुछ कुछ कहते हैं जिनको नहीं मालूम होता है, ठीक है, वे प्रोटीन से भी ले सकते हैं आप। I want to ask you one question that you know when we are talking about the sources of protein here, I want to ask you कि ये जो powder form में protein होता है उसकी क्या जरूरत होती है अगर natural sources से हम लेते हैं? How is it different from the protein that we get from the natural sources? Good question, ठीक है। अभी होता क्या है, जब हम प्रोटीन पाउडर से प्रोटीन की क्वांटिटी हमारी नीड्स पूरी करते हैं, तो अब सोचिए आप एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन है, ठीक है। तो अगर मैंने बोल दिया कि आपको आपकी बॉडी को 150 ग्राम प्रोटीन की नीड है, तो आप कितने अंडे खाएंगे, कितना चिकन खाएंगे? आई थिंक एक कोई न्यूट्रिशनिस्ट ही बता सकता है जो आप हैं, ठीक है। और वेजिटेरियन में काफी लिमिटेड सोर्स होते हैं प्रोटीन के, ठीक है। ऐसा नहीं है, I've seen vegetarians struggle a lot with the options for protein क्योंकि ले दे के सिर्फ पनीर बचता है जो कि मुझे पता है, but you can tell us better. हाँ, प्रोटीन पनीर में देखो, बेसिकली वेजिटेरियन के लिए सबसे अच्छा है पनीर, ठीक है। लेकिन कुछ लोग कुछ दिन खाते हैं और फिर उब जाते हैं उस चीज से, ठीक है। लेकिन अगर पनीर भी खाते हैं तो 100 ग्राम में अराउंड 15 से 18 ग्राम प्रोटीन होता है। 100 ग्राम में 15 से 18 ग्राम प्रोटीन जो है, वो कितना पनीर खा लेंगे? अगर मैंने 150 ग्राम प्रोटीन लिख दिया है, कह दिया है, तो कितना प्रोटीन खा लेंगे? बहुत मुश्किल हो जाता है उसको प्रोटीन हमने आपकी नीड जो है उससे सिर्फ पनीर से कवर करना। तो सिंपल है, आप वे प्रोटीन से उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। वे प्रोटीन में एक स्कूप जो कि 25 से 30 या 35 ग्राम की होती है, उसमें 25 से 28 ग्राम प्रोटीन या 30 ग्राम प्रोटीन तक भी होता है, ऑलराइट, ठीक है। तो एक बार स्कूप लिया, मिक्स किया, आपने 2 चम्मच भी प्रोटीन ले लिया, उसमें 60 से 80 से 90 ग्राम प्रोटीन आपका आ जाता है, 60-70 ग्राम प्रोटीन आपका आ गया, ठीक है। अगर 30 ग्राम भी है तो 2 चम्मच अगर आप ले लिए 60 ग्राम प्रोटीन आ गया। आई थिंक ये कैलकुलेशंस तो हैं तो मेरे तो you know I always require you when it comes to calculation. Like right now, I think the best thing to do, which we personally suggest, is that whichever sources of protein that you take, it is always good to take basic advice from a nutritionist. I feel that even if you cannot afford a diet, एक basic counseling हमेशा ले लेनी चाहिए, okay, because there are people who are guiding. And secondly, I don't know कि जो लोग अपने health and fitness का specially ख्याल रखते हैं, people who are going to the gym, अगर काफी सारे लोग like including us, we've stopped going to the gym just because we don't want to put ourselves in a situation where we can catch the infection, right? And we're keeping ourselves safe over here. So in that case, I think the only thing that you can do for your health and fitness is whatever workout that you can do in the house. And I think majority आपका सारा diet पे है, बिल्कुल, ठीक है। अगर आप वर्कआउट एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी डाइट ही ऐसी चीज है जो कि आपको सेव रख सकती है, ना कि सिर्फ आपके बॉडी फैट से, इनफैक्ट आपको कोविड टाइम से, ठीक है। तो कोविड में सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे तेज इम्पैक्ट होता है हमारे इम्यून सिस्टम पे, ठीक है। कोल्ड हो जाता है, फीवर हो जाता है, ठीक है। कोविड बड़ी घातक बीमारी है और कुछ अलग ही लेवल से अटैक हो रहा है, ठीक है। इनफैक्ट WHO तक को भी क्लियर नहीं है कोविड है क्या, ठीक है। 100% क्लैरिटी उनको भी नहीं है। वैक्सीन आ रही है, वैक्सीन भी फेल हो रही है क्योंकि 2 टाइप के जो कोविड है उनके ऊपर वैक्सीन आ गए, लेकिन तीसरे टाइप का आ गया वायरस जो है, तीसरे टाइप का आ गया,
तो इसका तो सबसे बेहतर इलाज ये है कि अपने घर पे रहो और अच्छा खाना पीना खाओ। ठीक है, अच्छे खाने पीने से लोगों का मतलब होता है घर का खाना खा रहे हैं हम तो, राइट हम बाहर का कुछ नहीं खा रहे हैं, हम पिज्जा नहीं खा रहे हैं, हम समोसा नहीं खा रहे हैं। अरे भाई, जो पिज्जा समोसा में डलता है वो आप घर में बना के खा रहे हो, क्या फायदा? बात वही हो गई। सेम बात होगी, फिर तो बाहर ही जाके खा लो, टेस्ट भी आ जाएगा। राइट ठीक है। राइट राइट तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अच्छा खाइए, प्रोटीन अच्छा खाइए, ठीक है, गुड अमाउंट में फैट लें, गुड अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट लें, ठीक है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, ठीक है, इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली धीरे 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 बिल्ड होता रहेगा। राइट I think protein is one of the ways which can help you build your immunity. बिल्कुल। Right. And if you are joining in now, so you can always go back and check the feed later on. This feed will also be available on YouTube in our Health and Happiness series. Please feel free to subscribe and give us the support that we need. And if you have any questions which you want to ask right now, you can ask those questions. If not, you can ask these questions later on in the comments or via messaging, and we will be more than happy to help you out at this time. We're offering a free counseling service that I would like to mention again. So if you are interested in that, feel free to, just ping. We're just a call away. So another thing which I want to ask, ये plant-based protein का ये नया concept है, नया क्या मतलब है तो काफी ongoing है। पहले से ही, हाँ। हाँ, बट अभी थोड़ा सा अरे हाइप trend बना में, हुआ है, हाँ। ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट है। सो plant-based protein. So what do you think about that, Rahul? What do you say? ठीक है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन, लेकिन मैं किसी चीज को ठीक या बेहतर तब एडवाइस करता हूँ, तब सजेस्ट करता हूँ। अभी आप मुझसे पूछे कि मैं प्लांट बेस्ड प्रोटीन खा लूँ, Right. प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर है, पी प्रोटीन है, मैं वो खा लूँ, तो Right. मैं बिल्कुल ही मना करूंगा। पहली चीज तो ये है, हमारे पास जब पहले से ही अच्छी चीज अवेलेबल है, तो हमें दूसरी सेकेंडरी चीज पे क्यों जाना है? Correct. ठीक है, एंटरटेन करने के लिए तो खा नहीं रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कि उसका टेस्ट बहुत अच्छा है, टेस्ट भी कोई कमाल नहीं है उसका। Right. ठीक है, टेस्ट के लिए ही जा रहे हैं एक बार को, तो ये भी मानूं। Right. ठीक है, तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, उनमें वो सब एमिनो एसिड के थोड़े मिसिंग होते हैं जो वे प्रोटीन में होते हैं। ठीक है, बॉडी 100 में से 100% एब्जॉर्ब करती है वे प्रोटीन, क्योंकि प्लांट बेस्ड सोर्स प्लांट प्रोटीन जो है वो उसका जीआई इंडेक्स थोड़ा डिफरेंट होता है, बायोलॉजिकल वैल्यू डिफरेंट होती है। What is the GI index? ग्लाइसेमिक इंडेक्स। Okay. ठीक है, मतलब एक कोई चीज आप खा रहे हो, वो आपने ऊपर से 100% खाई है, लेकिन आपकी बॉडी में जाते जाते कितना परसेंट आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाती है, डाइजेस्ट कर पाती है। Okay. ठीक है, Alright. तो प्लांट बेस्ड जो प्रोटीन है उनका जीआई इंडेक्स खासा कोई अच्छा नहीं है। ठीक है, टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं है, बजट फ्रेंडली भी नहीं है। ठीक है, और सेकंड क्लास चीज है। Okay. ठीक है, अगर आपको वेजिटेरियन पे ही रहना है, वीगन की अलग बात है, वेजिटेरियन पे ही रहना है तो वे प्रोटीन आप ले सकते हैं, अफोर्डेबल है, 3000 से लेकर 9000 तक का अवेलेबल होता है, कोई भी लीजिए। एटलीस्ट 3000 वाला भी आपके 6000 वाले पी प्रोटीन से अच्छा होगा, ग्रास प्रोटीन से अच्छा होगा। ग्रास में मतलब ग्रास में कहाँ से प्रोटीन आ जाता है, तो समझ से बाहर है। Right. So again, ये वही रिसर्च वाली बात है, and that's how what people do. वही रिसर्च आके कोई ना कोई चीज नहीं आ जाती है, and then it starts trending because lot of people are wanting to sell. तो हमारी especially the kind of audience that we have, it is all about the marketing, right? So अगर हर एक चीज की मार्केटिंग जो है आप जितना करोगे उतना ही लोगों के दिमाग में जाएगा। एंड अगेन व्हेन समथिंग न्यू इज लॉन्च्ड, उसका एडवर्टाइजिंग होता है, बार बार वो चीजें दिखाई जाती है, बार बार चीजें वो आपके माइंड में आती है, सो यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द फैक्ट एंड देन इट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट। एडवर्टाइजिंग बेसिकली एज अ made to create an impact so that you go and you get attracted towards a certain product. So it is always better to check the nutrition value, right? That is when you get to know कि उसमें actual protein कितना है। अभी I don't want to name the product. अभी recently we were out buying something in the chemist, and I think diabetic. You picked that out. So would you like कंपनी का to ब्रांड का नाम नहीं बताता हूँ मैं, लेकिन उसमें लिखा था डायबिटिक प्रोटीन, for especially for diabetic people? हाँ, तो मैंने उठाया, मैंने बोला यार बड़ी अच्छी चीज होगी, शायद कुछ अच्छा निकला है। ठीक है, अपने आप को अपग्रेड करते हैं, एक मेडिकल स्टोर पे जाके, क्या पता कुछ अच्छी चीज देखने को मिल जाए। Right. उसको उठा के देखा, उसमें दुनिया भर का तो शुगर भरा हुआ है। Right. प्रोटीन था 28 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट था 48 ग्राम, 48 ग्राम ऑफ कार्ब्स। Wow. ठीक है, इन 100 ग्राम। तो यार ये क्या है ये? मैंने बोला, मैं मेडिकल, मेरे मतलब दिमागी बड़ा सनक गया। मैंने बोला मेडिकल स्टोर वाले से, मैं ये सच में डायबिटीज वालों के लिए? फिर सर लिखा आता है, मैं क्या बोलूं। और कोई भी डायबिटीज वाला बंदा जाएगा,
ठीक है, वो देखेगा अरे वाह डायबिटीज वाले के लिए ये तो बड़ा अच्छा है, इसको ले लो, स्पेशली लिखा है स्पेशली फॉर डायबिटीज Right. डायबिटिक पर्सन, ठीक है, तो उसको ले लेते हैं लोग। जैसे अभी कुछ प्रोटीन ऐसे आते हैं जो कि स्पेशली डॉक्टर्स ही रिकमेंड करते हैं, ठीक है, मेरे एक मेंबर है, उनको भी रिकमेंड किया, नाम है उनका क्या, रितिका, ठीक है, उनको सजेस्ट किया कि आप ये ही खाइए, क्योंकि आप प्रेग्नेंट हो तो आप ये स्पेशली प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू इतना घटिया था जिसकी कोई हद नहीं, दुनिया भर का कार्बोहाइड्रेट भरा हुआ है, दुनिया भर का, और डॉक्टर ये बोल रहा है कि आपको कार्ब्स कम खाना है, प्रोटीन Right. बढ़ाइए, उसके Right. लिए मैं ये आपको दे रहा हूँ, और उसमें दुनिया भर का कार्ब भरा हुआ है, Correct. ठीक है, उनमें इतना साइंस नहीं, इतना नॉलेज नहीं कि न्यूट्रिशनल वैल्यू देखें कि प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए और कार्ब ना के बराबर होना चाहिए, जितना 3 ग्राम 4 ग्राम 6 ग्राम होगा तो उतना अच्छा है, Correct. Correct. ठीक है, आप उसमें प्रोटीन 20 था, कार्ब 60 था, अरे यार क्या दे दिया है, शुगर वो 16-17 था, So, बस नाम वो था प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए। right. So, whenever you out buying something for your health, always check the nutrition value. थोड़ा सा research भी करेंगे तो भी अच्छा है. And especially these kind of sessions are there to make you aware. So, if you have any queries about क्या अच्छा है, क्या बुरा, you can even write those questions and we'll make sure कि ये questions हमारे तक आते हैं, ये queries, tarot से related हो गए या आजकल nutrition से related बहुत queries आ रही हैं. So these queries come to us, okay? They come to us through Ritu and she compiles those queries and then we give answers over there, and these answers are sent to people via WhatsApp or whatever mode of communication they have tried. So all these queries are being answered right now. And if you have any such queries, you can reach out personally as well अगर आपको इस तरह का कोई question है. Moving on, there are fancy diets like you talked about, vegan also. Okay, do you personally suggest a vegan diet if you're talking about a protein-rich diet? नेवर, Okay. ठीक है, आज से पहले मैंने किसी को दी भी नहीं है इनफैक्ट वीगन डाइट, ठीक है, कोई इक्का दुक्का होगा कोई जो कि मतलब डॉक्टर मेडिकली प्रिस्क्राइब अगर हाँ. करता है तभी आई थिंक यू गिव आउट those kind of diets. इनफैक्ट उस टाइम पे भी नहीं देता हूँ, उस टाइम भी डॉक्टर से बात करता हूँ, ठीक है, लेकिन कोई अगर मतलब बाई नेचर ही वीगन है, उसको नहीं खाना है तो वो अलग चीज है, तो मैंने एक आध को कहीं सजेस्ट किया हो या दी हो डाइट बना के, वो अलग चीज है, अगर वीगन डाइट भी देता हूँ, मतलब honestly speaking, But we don't prefer to give that diet because that diet is not that healthy. That's what we are trying to say. So protein rich diets कौन सी हैं जिनके नाम लोगों को फैंसी नाम लोगों को पता है? ठीक है, पहली चीज ग्लूकोनियोजेनेसिस करके एक डाइट है, उसमें होता क्या है, प्रोटीन बहुत ज्यादा खाते हैं, ठीक है, और कार्ब बिल्कुल ना के बराबर खाते हैं, और फैट को मॉडरेट रखते हैं, जितना कीटोजेनिक पे रखते हैं, ठीक है, तो प्रोटीन इतना ज्यादा ले रहे हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है बॉडी में नए ग्लूकोज का निर्माण होना, नए ग्लूकोज का बनना, ठीक है, तो ऐसे मतलब डाइट के साथ इस तरह से खेला जाता है कि बॉडी में अंदर जाके ग्लूकोज बन रहा है, भाई क्या जरूरत है, बाहर से कार्ब खा लो, अंदर जाके ग्लूकोज ही बनने वाला है, इतनी महंगी डाइट लोग फॉलो करते हैं जिसका कोई रीजन नहीं है। Yeah, I remember there was a time the ketogenic diets जब गुड़गांव में launch हुई थी, they were selling at 17,000 a month. 18,000 a month plus and tax. plus tax. And I remember one of my neighbors जो कि side में Orchid Petals, she stays over there, Veena, if you remember. She bought that diet and नहीं, बहुत सारों ने ली थी। Yeah. अच्छी डाइट है, अगर कोई फॉलो करता है तो बहुत अच्छी डाइट है। That was my first experience because every time after every 3 days she used to come to me and ask me about पतली हो गई क्या? So that is why I remember she bought the diet. So ketogenic पे भी we have done some I think हमने ketogenic पे live करा है ketogenic diet के बारे में. So if you're interested in that, it's easy to find that on the YouTube channel. Hi Chandni, how are you? So again, protein का हाँ, General Motors GM diet, which is something that I would like to ask you. What about that? GM डाइट देखो होता क्या है, जनरल मोटर डाइट है, उसका फुल फॉर्म ये है जनरल मोटर डाइट, ठीक है, जो कि जनरल मोटर को तो अब मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले हमारे इंडिया ने भी आउट कर दिया, और डाइट मतलब मोटर, जनरल मोटर डाइट एक ऐसी डाइट है, ठीक है, उसमें पहली चीज तो आपका प्रोटीन नहीं होता था, फैट्स नहीं होता था, होता क्या था, फ्रुक्टोज शुगर, I think a lot of fruits you get to ठीक है, थोड़ा बहुत आप मिल्क किसी फेस में डाल दिया, तो वो कहते थे 7 से 10 दिन ये डाइट फॉलो करो, आपका 7 से 8 kg वेट डाउन हो जाएगा,
और फिर मतलब आप पतले हो जाओगे, ऐसे दिखोगे वैसे दिखोगे। दिखने वालों ने बहुत देखी भी है डाइट, खुद ही मतलब डाइट लेते थे किसी से और खुद सेल कर देते थे डाइट। ठीक है, मगर ये भी अच्छा है, चलो रोजगार मिल रहा आई थिंक ये है। जो एड्स होते हैं रिलेटेड टू यू नो एक हफ्ते में 2 किलो कम, एक हफ्ते में 7 किलो कम, ऐसे करके आपके पास आए हैं मैजिक क्लाइंट्स विद कमिंग विद दीज काइंड ऑफ क्वेरीज। बड़ा एंटाइसिंग सा लगता है। द होल कॉन्सेप्ट इज वेरी गुड टू हियर एंड समथिंग दैट पीपल वांट टू लिसन टू, स्पेशली जिनका वेट ज्यादा बढ़ा था वो ऐसी चीजें देख के बड़ा अट्रैक्ट होते हैं। अरे मैं इनफैक्ट मैं भी फेसबुक पे कई बार खोलती तो उसमें आता है कि इफ यू वांट टू reduce 10 kgs in a month, please DM me and I will send you the समथिंग course. लूज वेट नाउ, So टेल मी हाउ, आस्क मी हाउ। ask me how. हाँ हाँ। So please let me know how. What is the mystery behind that? Because I am sure you must have received the queries. एक तो query मुझे याद है जो आपको आई थी। So please throw some light on that. ये बड़ा अच्छा मतलब question है। ठीक है, लेट इट बी। हम टॉपिक से ऑफ टॉपिक हो जाएंगे। तो अभी मैं जो आता हूँ, मेरे को तो एक क्वेरी मतलब एक ही आई है ऐसी क्वेरी, तो सर मुझे कुछ मैजिकल डाइट दो। Yeah, magical diet. Yeah. मतलब मैं कुछ छड़ी घुमाऊं और मैजिक हो जाए। मैजिकल कुछ नहीं होता है। Right. ठीक है, कुछ मैजिकल नहीं होता है। सब कुछ आपके ऊपर है, आपके हाथ में है। आप मोटे तब तक नहीं हो सकते जब तक आप होना नहीं चाहते हो। आप Right. खुद होना चाहते हैं मोटे, इसीलिए कुछ खा रहे हो। आप खुद अपनी हेल्थ खराब करना चाहते हो, इसीलिए कुछ ना कुछ अपनी बॉडी में डाल रहे हो। प्रोसेस फूड इतने ज्यादा खा रहे हो, चाइनीज फूड्स इतने ज्यादा खा रहे हो। ठीक है, और बहुत सारे फूड्स ऐसे हैं जिनके इंग्रेडिएंट्स लगता है लोगों को कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत घटिया फूड्स हैं। Right. ठीक है, और हेल्दी समझ के लोग खाए जाते हैं। ऐसा ठीक नहीं है, ना करो यार ऐसा। So ये GM diet मैंने इसलिए पूछा था because I got to know from few people ये GM diet को ही थोड़ा सा ट्विस्ट करके ये इन तरह की डाइट्स में दिया जाता है जिसमें कैलोरी नेगेटिव कैलोरीज इज द वर्ड दैट आई got to know. So what is this negative calorie? नेगेटिव कैलोरीज ऐसे मतलब सिर्फ यही है, आप वो सारे फूड्स खाइए जिसमें की कैलोरीज बहुत कम हो। ठीक Okay, है, so how? और नेगेटिव कैलोरी से मतलब है आपकी बॉडी में कैलोरीज कम से कम जाने देना, और माइनस के तरह से एक बार जाने देना कैलोरीज। Okay. ठीक है, नेगेटिव कैलोरी से सीधा यही मतलब होता है। कुछ और होता हो तो मुझे पता नहीं, बेसिकली नेगेटिव कैलोरी का मतलब ये है। तो उस डाइट में होता क्या था, आपको फाइबर ज्यादा खिलाए जाते थे। ठीक है, और ये मैं अगर ये बोलूं फाइबर रिच डाइट, लोग बड़े इंप्रेस हो जाते हैं, अरे वाह फाइबर रिच डाइट। फाइबर, अरे क्या करेगा फाइबर रिच डाइट का? ठीक है, ऐसा कौन सी चीज कर रहा है फाइबर तेरी बॉडी में? ठीक है, जितना फाइबर की नीड होती है उतना हमारे बेसिक फूड्स में चला जाता है। थोड़े से भी ग्रीन वेजिटेबल्स आपने खा लिए उसमें भी चला जाएगा। Right. थोड़ा बहुत कार्ब, एक रोटी, 200 ग्राम चावल भी खा लिए उसमें भी चला जाता है इतना फाइबर तो। Right. लेकिन लोगों को इंप्रेसिव लगता है फाइबर रिच डाइट। ठीक है, तो फाइबर आपकी बॉडी में जा रहा है उसमें। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी बहुत कम जा रहा है वहां पे। ऐसा भी नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा जा रहा हो, कार्ब्स कम जा रहा है, मतलब कैलोरीज ड्रॉप हो रही है। तो 3 जो मेजर कंपोनेंट है जो हमें एनर्जी देते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, मैक्रोज, फैट जो कि उस डाइट में बिल्कुल ना के बराबर होता है, शायद होता होगा शायद नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है। What I read was fat शायद होता ही नहीं है। सेकेंड प्रोटीन जो कि ना के बराबर होता है, कहीं मिल्क में या कर्ड में डाल दिया तो डाल दिया, अदरवाइज नहीं होता। थर्ड होता है हमारा ये कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन जब आपकी डाइट में नहीं है तो मेजर सोर्स ही नहीं है आपके पास एनर्जी के, तो बॉडी एनर्जी कहाँ से लेगी? ठीक है, आपकी मसल्स में जो अमीनो स्टोर्ड है वहां से वो एनर्जी लेने लग जाएगी। आपके फैट जो स्टोर्ड है वहां से एनर्जी लेने लग जाएगी, आपके इम्यून सिस्टम को ड्रॉप करने लग जाएगी बॉडी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब होने लगेंगी तो मसल लॉस तो होगा ही होगा, Absolutely. वाटर लॉस तो होगा ही होगा, Absolutely. आपका इम्यून सिस्टम, बोन डेंसिटी, ये सारी कम होती जाएगी। लोग खुश होते रहते हैं विंग्स के देख के, अरे वाह मेरा 5 किलो कम हो गया, 7 किलो कम हो गया, 10 किलो कम हो डाइट गया। खत्म करके दे कम बैक टू नॉर्मल फूड, फिर से वेट बढ़ जाता है। वो ये सजेस्ट करते हैं कि उसके बाद आप हाई प्रोटीन पे जाओ। अरे भाई हाई प्रोटीन पे जाने के पहले मतलब ये सजेस्ट करते हैं आप अपनी मसल गिरा दो, उसके बाद किसी भी तरह से मसल अप करो, पुट ऑन करो मसल। ऐसे ये तो गलत बात है ना। इनफैक्ट वो तो सजेस्ट ही नहीं करते। तो बाद में कुछ न्यूट्रिशनिस्ट आके ने आके बोला, जो कि जीएम डाइट देते थे 5-7 दिन वाली, उसके बाद कहते हैं हाई प्रोटीन करो, 4-5 केजी डाउन हो गया, हाई प्रोटीन करो। Hi Alfaz, how are you? Good to have you here. So I think that was the science of the mystery behind this question. So if you get enticed by these kind of things, please अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। जो भी चीजें बिना मेहनत के आपको मिल रही हैं, considerable मेहनत के, not कि मैजिक है,
सो विदाउट वर्किंग हार्ड इट्स नॉट पॉसिबल. जो वेट आपने गेन करने में या लॉस करने में इतना टाइम लगाया है, राइट, तो वो हफ्ते भर में इस तरह से नहीं जा सकता. एंड आई थिंक उसको सस्टेन करना भी उतना ज़रूरी है. आपकी इंटरनल जो हेल्थ है वो भी अफेक्ट ना हो. Again, I would like to say a role of a fitness coach and a nutritionist is to make sure that you are attaining your fitness goals and you're maintaining your health internally and how you look from the outside. So your body needs to be toned, your muscle should not drop, your fat has to be lost. Correct? बिल्कुल ठीक है. So- तो फैट लॉस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, पेशेंस लगता है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होता है. ठीक है, आप अच्छे, आपकी लाइफस्टाइल चेंज होती है उससे. Right. आप वेट करते हो अपने आप को पतला होने का. पतला होने से मतलब है सिर्फ फैट के जाने का. Correct. ठीक है, मशीन पे नंबर कम होने से पतला नहीं होते हैं. ठीक है, तो बेटर ये है कि आप अच्छी डाइट लें, प्रोटीन रिच डाइट लें, कार्ब्स ओके रखें, मॉडरेट से लो रखें, फैट मॉडरेट से लो रख सकते हैं, डिपेंड करता है आप कौन सी डाइट पे जा रहे हैं. और कोई भी डाइट अगर आप खुद भी बनाते हैं, किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट से एक बार एडवाइस ले लें, फ्री होती है यार. ठीक है, Right. चार्जेबल भी होगी, 500 700 1000 2000 रुपए, इससे ज्यादा चार्जेबल नहीं होती है. ठीक है, इनफैक्ट आप भी कुछ सीखोगे उस चीज से. ठीक है, उस बंदे ने काफी टाइम से 8-10 साल से इस चीज पे बैठा है, पढ़ाई की है, रिसर्च करी है, एक्सपीरियंस है. ठीक है, कितने लोगों को ट्रांसफॉर्म किया है, कितने लोगों को डाइट दी है, उसके बाद कहीं जाके वो एक अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट कहलाता है. तो आप उसे छोटी सी 20 मिनट 25 मिनट की काउंसलिंग ले लेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा. Yeah, like I would like to mention again, जो I think मैंने last week में भी mention किया था regarding the kind of services that we offer in terms of nutrition. What he is trying to say is that he, of course, he has a lot of transformation stories जो सिर्फ nutrition की भी हैं. He has a lot of transformation stories जो सिर्फ fitness से related भी हैं. He has transformation stories in which one person is taking both the services. And again, there are results in people which are long lasting. So basically, if you're talking about just nutrition over here, we are providing this as a weekly diet. एक month का package होता है जिसमें आपको break down करके 4 weeks के हिसाब से diet दी जाती है. And in the start of the month, again, you identify what the fitness goal is, you identify in what shape they are in. And after a discussion, you advise a week's diet. And after that week, okay, then the next week diet is reviewed as to आपने किस तरह से उसको follow किए, कितना up down calorie deficit या calorie उसमें बढ़ाना है, इस तरह से it's given. So ऐसा कुछ भी नहीं है in which you're given the whole diet in which you are supposed to just follow इस महीने blindly आप follow कर लीजिए. So we make sure that whenever we give you a diet, we are हम आपके साथ ही लगे रहते हैं. Any questions that you have, you can always ask us. अगर आप उल्टा सीधा खा लेते हो तो आप बता सकते हो so that we can modify your next meal. So we give these services in a micro management kind of a way. So you can always reach out to us in case you take a package for us. These services are also there. And yes, please pray for all who are fighting these days, being connected to spirituality. Yes, of course. Naman, I feel there are further messages also. Yeah. Hi. I just saw your message. So yes, we are praying for all those, and during our normal spiritual practices, during our normal healing practices, which we do every day, we are always praying for people, which is why again I would like to mention for you as well, Naman, ki health से related counseling we are providing free of course, so you can tell other people about this, and they can avail these services. They can DM on the number which is given for the WhatsApp, that is Ridhu's number. I see there are a lot of cases which are coming to you and you asking for a lot of help, and we've also, I think you also shared one of his feeds. So please आप लोग reach out करें, and हम लोग Rahul can take an appointment and can counsel you at this time. We are all there to help. This is at no charge. अल्ताफ सिद्दीकी, वेट गेन प्रोटीन कौन सा लेना चाहिए? ठीक है, प्रोटीन आप बेसिकली आप कोई भी ले सकते हो, कोई भी वे प्रोटीन ले सकते हो, लेकिन मेरा मानना ये है कि पहले आप डाइट से बेटर कीजिए अपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट को. ठीक है, पनीर, चिकन, अंडा, ये सारी चीजें ऐड कीजिए. 2 से 3 एग ऐड कीजिए. ठीक है, डिपेंड करता है फिर आपके बॉडी वेट पे भी. 200 ग्राम से 250 ग्राम डेली चिकन ऐड कीजिए. ठीक है, एटलीस्ट इतना कीजिए. उसके बाद आप कहीं सोचिए कि प्रोटीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. पहले नेचुरल सोर्स से लेना चाहिए. अगर आप कंप्लीट कर पाते हो तो फूड से बेटर प्रोटीन किसी में नहीं है. ठीक है, उसके बाद अगर आप प्रोटीन लेना चाहते हो, मुझे आप डीएम करो, मैं बता दूंगा. Absolutely. And
again, that is where we'd like to end this feed now. बिल्कुल And thank you so much for joining in, guys. It is always good to have your love and support over here. Thank you for following our YouTube channel. We are gaining subscribers, and if you are not following that already, please do so. There is also a series on health and happiness which is going on, which is again about health and nutrition, which is we have specially launched during this pandemic. Also, there are tarot guidance, which is premiering daily. So we have launched 3 sun signs already so far, and every day there is a one sun sign which we are revealing. So this time the difference is that I was doing quick readings earlier. During this time, I'm just making those readings a little detailed. So आप अपने sun sign के according वो readings सुन सकते हैं, वहाँ comments डाल सकते हैं. एक कोई specific question होगा तो card के according I can answer that question for you. So again, that is something which we are offering free of charge. So please go ahead and follow the YouTube channel. Ram, can you provide the link in the feed here? Is it possible to do that so that people would know? And I think, would you like to share anything further before we end this feed? this link. Nahan, this is one of the links you can say. This is a video of the. This is the link of the video which is premiere today. So यहाँ से आप at least हमारे channel तक पहुँच सकते हैं, and you can explore other playlists. So there are different playlists as well which are going active. So again, thank you so much, and we will see you next time. Thank you so much, guys. Thanks for coming. And we'll see you on Sunday now. On Sunday का topic रहेगा carbohydrates, what to do with that. You can go in the event section and check the details for that. And Sunday को फिर से मिलते हैं. Thank you so much for joining in. Thank you for watching us. जय श्री राम. ख्याल रखें आप अपना. Thank you.